Dear brothers and sisters, as we are meditating the suffering of Jesus, प्रिय भाई और बहनों, जबकि हम प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण कर रहे हैं, even while I would be speaking, expect miracles to happen in your life. आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने जीवन में एक चमत्कार की आप आशा रखें May be in a prayerful attitude और एक प्रार्थना के भाव में रहें and receive God's miracles. और परमेश्वर के चमत्कारों को पाएं। Today we are going to meditate Luke 22:47 and 48. आज हम मनन करेंगे लूका 22 और उसके वचन 47 और 48 पर। While he was still speaking, a crowd came up and the man who was called Judas, one of the 12, was leading them. वह यह कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा He था। approached Jesus to kiss him. वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। How was Judas leading this huge crowd? यहूदा जो था इस बड़ी भीड़ की अगुवाई कैसे कर रहा In था? Matthew 26:47, the Bible says, मत्ती 26 और उसके वचन 47 में बाइबल जो है मैं बताती है, these men were armed with swords and clubs. ये जो लोग थे वो लाठी डंडे और हथियार और तलवारों से लैस। They came to Jesus to arrest him. वो यीशु को गिरफ्तार करने आए थे। Who were these people? तो ये लोग थे कौन? They were Roman soldiers and some of them were the officers of the chief priests. वे तो रोमी सैनिक और उनमें से कुछ जो है यहूदी महायाजक के लोग How थे। bad the Lord would have felt at that time. उस समय प्रभु यीशु को कितना बुरा लगा होगा। He was filled with agony thinking about his death. वो अपने मृत्यु के बारे सोच करके दुख से भर गया होगा। At this time, at the height of his agony, these people came forward with the intent of killing him. और ऐसे समय जब यीशु बहुत ही ज्यादा दुखित था, ये सारे लोग उसको मारने की मंशा के साथ But आए। then the disciples who were around him, they asked him, as in Luke 22:50, लेकिन जैसा कि लूका 22 उसके वचन 50 में हम देखते हैं, उसके चेलों जो उसके साथ थे वे उससे पूछते हैं, before going to the cross, Jesus was talking with the disciples. क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले यीशु अपने चेलों से बात कर रहे थे। Disciples would have asked him so many questions about his death. उसके चेलों ने उसकी मृत्यु के बारे में बहुत से प्रश्न किए होंगे। As he was conversing with them, these huge crowd came to him to arrest. और जब उनसे बात कर रहा था, ये बड़ी भीड़ उसको गिरफ्तार करने आई। While Jesus was having fellowship with his disciples, these people came to kill him. जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ संगति कर रहे थे, उस समय ये लोग उसको मारने के लिए वहां आए। So one of the disciples got so angry, and as in Luke 22:50, he struck the high priest, slashing off his right ear. और उनमें से एक चेला जो था वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उसने अपनी तलवार निकाली और महायाजक का जो नौकर था उसके कान को उसने काट डाला। But then even at that time, the Lord had compassion at that man and he healed his ear. लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के ऊपर तरस खाया और उसने उस व्यक्ति के कान को चंगा कर दिया। Here Judas, one of his disciple, one of his follower, why did he come with the crowd to arrest Jesus? लेकिन यहूदा जो उसका एक चेला था, वो इस भीड़ के साथ यीशु के पास क्यों आया? As in Luke 22:3, the Bible says, जैसा कि लूका 22 वचन 3 में बाइबल कहती है, Satan entered Judas. शैतान यहूदा में समा गया। It was the Satan who made him do that. और शैतान ही था जिसने उससे ये सब करवाया। Judas was one of the apostles. यहूदा तो एक प्रेरितों में से He था। was ordained by Jesus himself. वो स्वयं यीशु के द्वारा अभिषिक्त था। But even then, as Satan worked through him, he did this horrible thing. लेकिन जब शैतान ने उसके अंदर में समा करके उसके माध्यम से सब किया, तभी उसने इस भयानक कृत्य को अंजाम दिया। As this incident was going on, और जब ये घटना जो थी घट रही थी, one of his disciples asked him, उसके एक चेले ने उससे पूछा, Lord, should we fight? प्रभु
क्या हम इनसे लड़ें? We have brought the swords with us. हमारे पास तो तलवारें हैं। But then Jesus answered him saying this, लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह कहते हुए उत्तर दिया कि no more of this. अब इनमें से कुछ भी नहीं। And he went further to touch the man's ear and even healed him. और तब वो आगे बढ़ करके उस व्यक्ति के कान को छूता और उसे चंगा करता है। Jesus literally blessed his enemy. यीशु ने सचमुच में अपने शत्रुओं को In आशीष दी। Matthew 5:44, Jesus says, love your enemies and pray for those who persecute you. मत्ती 5:45 में यीशु कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और सताने वाले को आशीष दो। Jesus did not say this for the sake of saying, but then he did this literally. प्रभु यीशु मसीह ने केवल कहने के नाम के लिए ही ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो उसने कहा उसने उसको अक्षरशः अपने जीवन में पूरा भी किया। It was like, let them go forward and take me as a prisoner. ये कुछ ऐसा था कि मानो आगे बढ़ करके कहना कि तुम मुझे बंदी बना लो। Jesus very well knew that this hour of darkness is going to come to him. यीशु इस बात को निश्चित जानते थे कि अंधियारे का समय आएगा। He was so confident. वो बहुत ही आश्वस्त थे। David also went through the same betrayal, dear friend. प्रिय मित्रों, दाऊद भी ऐसे ही विश्वासघात से गुजरा। As in 2 Samuel 16:5-13. जैसा कि दूसरा शमूएल 16:5-13 में हम पाते हैं। When David was thrown out of the throne and as he was walking in the wilderness, जब दाऊद को सिंहासन से नीचे उतार दिया गया और वो जंगल में भटक रहा he था, was betrayed by his own son. उसके बेटे के द्वारा उसके साथ विश्वासघात हुआ। And while he was walking in the wilderness, his close friend Shimei, he cursed him and threw stones on him. और जब वो जंगल से जा रहा था तो उसका एक बहुत ही करीबी मित्र शिमी जो था उस पर पत्थर फेंकता और उसके लिए श्राप उच्चारता है। But even then, David bore everything patiently. लेकिन तो भी दाऊद ने सारी बातों को धीरज से सहा। He did not open his mouth. उसने इन सारी बातों को सुनकर अपना मुंह नहीं खोला। Shimei went even so far to say, you have come to ruin because you are a murderer. शिमी तो यहाँ तक कहता है कि तू यहाँ आया है क्योंकि तू तो एक हत्यारा है। But then David bore everything patiently and he did not open his mouth. लेकिन दाऊद ने सब कुछ धीरज से सहा और उसने अपना मुंह नहीं खोला। He said, let him curse उसने कहा कि उसे श्राप देने दो, because this is God's doing. क्योंकि ये परमेश्वर का ही काम है। That the Lord has allowed me to go through this. ये परमेश्वर ने मुझे इन सारी चीजों से गुजरने दिया। Jesus also went through the same path. प्रभु यीशु भी उसी मार्ग से गुजरे थे। Maybe you are also going through the same path. शायद आप भी उसी मार्ग से आज गुजर रहे हैं। But then never retaliate, dear friend. लेकिन मेरे मित्रों, कभी भी आप पलटा न लेना। Don't curse anyone who curses you. आपको श्राप देने वाले को आप श्राप न दें, Because you are called by God to bless other people. क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा औरों को आशीष देने के लिए To बुलाए गए bless हैं, your enemy. ताकि अपने शत्रुओं को As आशीष in दें। 1 Peter 3:9. जैसा पहला पत्रस 3:9 में लिखा The है। Bible says, do not repay evil with evil, बाइबल कहती है बुराई के बदले तुम बुराई न or करो, insult with insult, या अपमान का बदला अपमान न दो, but repay with blessing. लेकिन उसके बदले तुम आशीष दो, Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. क्योंकि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम एक आशीष के वारिस बनो। When we bless our enemies, we inherit a blessing. जब हम अपने शत्रुओं को आशीष देते तो हम आशीष के Do वारिस not बनते हैं। take revenge, dear friends. इसलिए मित्रों, कभी भी पलटा न लें। As in Romans 12:19, the Bible says, जैसा रोमियो 12 उसके वचन 19 में बाइबल कहती है, do not leave room for God's wrath. परमेश्वर के क्रोध के कारण रोम को न For छोड़ो, it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. क्योंकि ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं पलटा लूंगा। Let God take care of our enemies. परमेश्वर जो है वही हमारे सारे शत्रुओं को देखेगा। Don't allow God's wrath to come upon you, dear और friends. परमेश्वर के क्रोध को आप पर कभी ना आने दें मित्रों। If God punishes someone, it comes upon them
7 times. परमेश्वर किसी को दंड देता है तो वो 7 गुना उस पर आते हैं। The Bible says so as in Leviticus 26:18. बिल्कुल वैसे ही जैसे लेवी व्यवस्था 6:18 कहता है। When the huge crowd came to Jesus with the intent of killing him, जब यीशु को मारने की मंशा के साथ एक बड़ी भीड़ यीशु के पास आई, Jesus, filled with agony, he raised a question to them. बड़े दुख से भर करके यीशु ने उनसे एक प्रश्न किया। Jesus said to the chief priests and officers of the temple guard and the elders who had come for him and said, जो मंदिर के सैनिक थे और जो महायाजक और दूसरे थे उनसे उसने कुछ इस तरह से पूछा, Am I leading a rebellion that you have come with swords and clubs? क्या मैं कोई विद्रोही नेता हूँ कि तुम तलवार और भाले लेकर आए हो? Because why did Jesus ask this question to them? लेकिन यीशु ने यह प्रश्न उनसे क्यों पूछा? Because Jesus clearly knew their intent. यीशु पूरी तरह से उनके विचार जानता था। The chief priests were envious about Jesus, as in Mark 15:10. जैसा मरकुस 15:10 कहता था, ये सारे लोग उससे जलन रखते थे They were so furious और वो बहुत ही क्रोधित थे because they were possessed with evil spirit. क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। The job of the devil is to kill, to destroy and to steal. शैतान का काम जो है वो लूटना, घात करना और नाश करना है। Once they even came to Jesus to find fault with him. एक बार वे यीशु की गलती को पकड़ने उसके पास आए। When Jesus was about to heal a man who जब had a यीशु deformed एक सूखे hand, हाथ के व्यक्ति को चंगा करने वाले ही थे, as in Matthew 12:10, जैसा मत्ती 12:10 में कहता है, they asked him a question like this: उन्होंने कुछ उससे यूं पूछा, Does the law permit a person to work by healing on the Sabbath? क्या व्यवस्था हमें इस बात के लिए अनुमति देती है कि सबत के दिन किसी को चंगा किया जाए? They wanted to bring charges against him, and so with that intent they asked these questions. वे उसके खिलाफ आरोप लगाना चाहते थे और इसी आशय के साथ उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे थे। Devil who was in them was making them to ask these questions. शैतान जो उनके अंदर था उनसे ये सारे प्रश्न करवा रहा था। Devil is a liar, शैतान तो एक झूठा and है he is the father of all lies. और वो सारे झूठ का पिता है। Jesus even says in John 8:44, जैसा कि यीशु यूहन्ना 8:44 में he कहते said हैं, to this to the chief priests and the elders. यह बात उसने महायाजक और पुरनियों से कही थी। Right at their face he said, You are the children of your father, the devil. और यीशु उनके मुंह पर सीधा कहता है कि तुम तो अपने पिता शैतान की संतान हो He said, You love to do the evil things he does. और उसे जो गलत काम पसंद है तुम वही करना पसंद He करते was a हो। murderer from the beginning. वो तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। He has always hated the truth उसने हमेशा सत्य से घृणा की है because there is no truth in him. क्योंकि उसके अंदर कोई भी सत्य नहीं। When he lies, जब वो झूठ बोलता है it is consistent with his character. तो ये उसके चरित्र के अनुसार ही है, For he is a liar and the father of lies. क्योंकि वो एक झूठा और समस्त झूठ का पिता है। Satan's ultimate goal for every lie he tells is your death. शैतान के हर एक झूठ के पीछे उसका उद्देश्य यही है कि आप मारे जाएं And he makes you to lie also. और इसलिए वो आपसे झूठ बुलवाता है। How much careful we should be for not to allow this devil to ruin our lives. और हमें कितना ज्यादा सतर्क ना रहना चाहिए कि शैतान हमारे जीवनों को नाश न करे। Satan entered Judas. शैतान यहूदा के अंदर समा गया Satan entered into all the offices of these high priests. और ये महायाजक के सारे अधिकारियों के अंदर वो समा And गया they even went to the level to kill Jesus. और वे इस स्तर पर चले गए कि वे सब के सब यीशु को मारना चाहते थे। That's why Jesus said to them, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, as in Luke 22:53, जैसा कि लूका 22:53 में है, Every day I was with you in the temple courts, मैं तो प्रतिदिन मंदिर के उसार में तुम्हारे साथ and you था, did not lay a hand on me. लेकिन तुमने कभी भी मुझ पर अपने हाथ न रखे। But then Jesus said, This is your hour. लेकिन यीशु ने कहा, ये तुम्हारी घड़ी है। Yes, that was the hour of darkness. हाँ, यह तो अंधियारे की घड़ी थी। Jesus very well
knew that hour of darkness. और यीशु उस अंधियारे की घड़ी को अच्छे से जानते थे। Jesus was so confident. वो बहुत आश्वस्त थे He was with full of God's power. और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे थे। Before giving himself to death, he prayed with all the disciples. खुद को मार डालने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के पहले उन्होंने अपने चेलों के साथ प्रार्थना की। He went alone and he cried to God with a loud voice and he said, Lord, if it is your will, let it be done. वो अकेले आगे जाता है और अपने पिता से ऊंचे आवाज में पुकार करके कहता है, हे पिता, अगर ये तेरी इच्छा है तो ये हो न दे। I know for sure the Lord would have filled him with his Holy Spirit and strengthened मैं him. जानती हूँ कि परमेश्वर पिता ने उसको अपनी आत्मा से भर करके बलवंत किया होगा। Jesus was so obedient to God and he humbled himself to death. प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के प्रति इतने ज्यादा आज्ञाकारी थे और उन्होंने अपने आप को मार डाले जाने के लिए उनके हाथों में खुद को सौंप दिया। That's why when people came against him, Jesus was not terrified at all. इसलिए जब लोग उसके खिलाफ में आए तो यीशु बिल्कुल भी न डरा। Even at that time, he wanted to transform those people. उस समय भी उन व्यक्तियों को बदल देना चाहता था That's why he asked them questions. और इसलिए वो उनसे प्रश्न करता है। Here again, Jesus asked a question to और Judas. यीशु ने यहाँ फिर से एक बार यहूदा से पूछा, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? यहूदा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र को एक चुंबन के द्वारा से पकड़वाएगा? As in Luke 22:48. जैसा लूका 22 वचन 48 कहता है। Judas was a friend of Jesus. यहूदा जो था वो तो यीशु का एक मित्र था। He was so close with Jesus, having his purse with him. वो यीशु का बहुत ही करीबी था और वो उसके पैसे देखता था। Jesus would have trusted Judas. यीशु ने यहूदा पर बड़ा भरोसा किया होगा। But then Judas betrayed Jesus with a kiss. लेकिन यहूदा ने एक चुंबन के साथ यीशु के साथ विश्वासघात किया। In another incident, while Mary was anointing the head of Jesus with the expensive एक अन्य perfume, घटना में जब मरियम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सिर पर बहुमोल इत्र लगा रही थी, as in Luke 7:45, जैसा लूका 7:45 में है, Jesus said to Judas like this, तो यीशु ने यहूदा से यूं कहा, You didn't greet me with a kiss, तुमने चुंबन के साथ मेरा अभिवादन नहीं किया, but this woman from the time she entered has not stopped kissing my feet. लेकिन जिस घड़ी से ये स्त्री आई है उसने मेरे पांव को चूमना बंद नहीं किया है। Kissing was a customary mark of respect at that time. उन दिनों में चुंबन देना एक आदर का प्रतीक था। When Saint Paul was departing from his disciples, जब संत पौलुस जो थे अपने शिष्यों से दूर जा रहे थे, अलग हो रहे थे, they all cried with loud voice, embraced him and kissed him. तो वे सारे जोर की आवाज के साथ रोने लगे, उसको आलिंगन में लेकर उसे चुंबन दिया। Kissing was a mark of respect at those days. और उन दिनों में ऐसे चुंबन देना एक आदर का प्रतीक होता था। In Romans 16:16, the Bible says रोमियो 16:16 में बाइबल जो है बताती है, we should greet the people with a holy kiss. हमें एक पवित्र चुंबन से लोगों का अभिवादन करना है। But then Judas abused the token of love, the kiss, to betray Jesus. लेकिन यहूदा ने इस प्रेम के प्रतीक चुंबन का इस्तेमाल यीशु से विश्वासघात के लिए किया And he betrayed Jesus. और इस तरह से उसने चुंबन के द्वारा यीशु से विश्वासघात किया। The Bible says in Proverbs 27:6, नीति वचन 27:6 में बाइबल कहती है, wounds from a friend can be trusted, एक मित्र के घाव तुम सह सकते हो, but an enemy multiplies kisses. लेकिन एक शत्रु जो है बहुत ही ज्यादा चुंबन देता है। David also went through the same thing in his life. दाऊद भी अपने जीवन में ऐसे ही अनुभव से गुजरा था। As in Psalm 41:9, David said, जैसा कि भजन संहिता 41:9 में दाऊद ने कहा, Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me. मेरा मित्र जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरे साथ भोजन करता था, उसने ही मेरे साथ विश्वासघात किया है। Job also said in Job 19:19, अय्यूब 19:19 में अय्यूब यूं कहता है, Those I love have turned against me.
जिनसे मैं प्रेम करता था वो मेरे खिलाफ हो गए। Maybe you are also going through the same agony. शायद आप भी ऐसे ही दुख से गुजर रहे हैं। Your own husband or your wife or your family members may be doing the same thing. आपके पति या पत्नी या आपके परिवार के लोग आपके साथ ऐसा ही शायद करते हों। Like Judas, they may be acting that they are with you. यहूदा की तरह वे ये दिखाते हैं वो आपके साथ हैं। Maybe for your money, for your property, they may act like शायद that. आपके पैसे या आपके धन संपत्ति के लिए वो इस तरह से दिखावा करते हैं। But behind your back, they may be doing things against you. लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपके खिलाफ में कार्य करते हैं। Maybe in your office, your staff may come against या आपके you. ऑफिस में आपके स्टाफ जो है वो आपके खिलाफ जा Your सकते हैं। close friend may come against you. आपके निकट मित्र आपके खिलाफ जा सकते From हैं। now on, dear friends, everything is going to change अब से मेरे प्रिय मित्रों सब कुछ बदलने जा रहा है, because Jesus knows all these things that are happening to you. क्योंकि प्रभु यीशु इन सारी चीजों को जो आपके साथ हो रही है Not जानता only है। that, he went through the same agony you are going through. क्योंकि वो भी उसी पीड़ा से और वेदना से गुजरे जिससे आप गुजर रहे हैं। Today you will stand still and see the deliverance of God. आज आप शांत रह करके परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, Father, how much you have gone through for our sakes, Lord. पिताजी हमारी खातिर आपने कितना दुख सहा है। Your close friends betrayed you, Master. आपके मित्र ने प्रभु आपके साथ दगा किया। Father, they had lifted their feet against you. उन्होंने आपके खिलाफ अपने पांव उठाए थे They came to you with the intent of killing you even. और यहाँ तक कि वे आपको मारने के उद्देश्य से आपके पास आए। How hard it would be for you, Lord. प्रभु यह आपके लिए कितना कठिन रहा होगा। Father, you went through all this for the sake of your children, Lord. पिता अपने बच्चों की खातिर आपने ये सारा कुछ सहा है। Master, I pray for all those who are suffering in the same way. स्वामी मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ जो ऐसे ही तरह दुख उठा रहे They हैं। may have come here with the same broken heart, Lord. शायद वे ऐसे ही टूटे हृदय के साथ यहाँ होंगे प्रभु। Heal their broken hearts. उनके टूटे हृदय को आप ठीक करें। Father, Lord, fill them with your spirit, Lord. पिताजी आप उन्हें अपनी आत्मा से भर दें, Fill them with your comforting spirit, Lord. अपनी शांति देने वाली आत्मा से उन्हें भर दें। And Lord, Father, everyone who are coming against them, let them be transformed, Lord, by your mighty power. और प्रभु जी हर एक जो उनके खिलाफ में आ रहे हैं उन्हें दें कि आपकी सामर्थ के द्वारा से वो सारे के सारे लोग बदल जाएं। Fill their hearts with your love. उनके हृदयों को अपने प्रेम से भर दें। Let the same people come to them and love them, Lord. उन्हें दें कि वही लोग उनके पास आकर के उनसे प्रेम करें। Father, save your people, Lord, from all these evil men. इन सारे बुरे लोगों से प्रभु आप उन्हें बचा लें। Lord, save your children from all these problems, Lord. अपने बच्चों को प्रभु इन सारी समस्याओं से आप बचा लें प्रभु जी। Lord, let your peace be given to them. और प्रभु आपकी शांति उन्हें दी जाए। Lord Jesus, let everything change from now on. प्रभु यीशु अब से हर एक चीजें बदल जाए उनके लिए। Let their sorrows be turned into joy. उनका दुख आनंद में बदल जाए। Let all the cursing be turned into blessing. हर एक श्राप उनके लिए आशीषों में बदल जाए। Father, let all the disputes be gone in Jesus' name. यीशु के नाम में हर एक विवाद उनके जीवन के चले No जाए। more fighting in the family. परिवार में अब कोई झगड़ा न Lord, हो। take away all the divisive spirit and bring unity in the family, प्रभु जी आप Lord. परिवार में हर एक विभाजन की आत्मा को दूर करके एकता ले Unite आए। the families together. परिवारों को आप एक करें। Unite the friends together. मित्रों को आप एक करें Unite the fellow workers together, Lord. और सहकर्मियों को भी प्रभु आप एक करें। Lord, I pronounce peace into every one of them. मैं उनमें से हर एक के लिए यीशु शांति उच्चारती हूँ। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you, friends. परमेश्वर आपको आशीष दे मित्रों।